A very good afternoon to one and all gathered here. I am extremely overwhelmed to welcome you all in the workshop on preparing business model initiated by Institution Innovation Council IIC of DAV College Jalandhar. I humbly request everyone to please stand up for the DAV Gaan. अविरल निर्मल सलिल सदय ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय हो चहु दिशि उद्घोष अभय दिए विजय जय दिए विजय जय प्रबल प्रवाहमयी नित नूतन जीवन दायिनी सदा सनातन वेद प्रणीता परम पुनीता ये धारा अक्षय दिए विजय जय दिए विजय जय दयानंद से प्रेम भक्ति ले हंसराज से त्याग शक्ति ले धर्म भक्ति का राष्ट्र शक्ति का हो दिन मान उदय दिए विजय जय दिए विजय जय सुख समृद्धि इसकी लहरे प्रेम शांति इसके तट ठहरे सघन शांतिमय प्रबल कांतिमय लिए अटल निश्चय दिए विजय जय दिए विजय जय Thank you very much. Success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. With this note, I would like to welcome our prestigious gold medalist, Chief Guest, Dr. Ashish Arora ji. We heartily welcome you, sir. The essence of great leadership is influence and not authority. With this note, I, Aditi Student Coordinator, Startup Activities, on behalf of IIC Council, would like to welcome our respected head of the college, our Vice Principal Ma'am, Professor Archana Oberoi ji, to this workshop. We celebrate your leadership and you keep on influencing us. I would like to welcome all the dignitaries on and off the stage who have always helped in uplifting the students. Last but not the least, I welcome all my student friends. You are strong and smart. Now, I would like to invite our Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am Archana Oberoi ji, Dr. Dinesh Arora ji, Vice President IIC, Dr. Rajiv Puri ji, Convener IIC, Professor Manish Khanna sir, Startup Coordinators, and other dignitaries to floral welcome of Dr. Ashish Arora ji.
Now, I would like to invite Professor Manish Khanna Sir, coordinate startup activities, to introduce our prestigious chief guest and keynote speaker. Welcome, sir. I'm very fortunate that I'm here to introduce Dr. Ashish Arora ji to entire council and all the students of DAV College. Welcome from my side also, sir. Dear students, Dr. Ashish Arora ji is an MBA gold medalist from Guru Nanak Dev University and a PhD in finance from Punjab University, Patiala. Presently working with Guru Nanak Dev University College, Jalandhar, he started his career with APG Institute of Management, Jalandhar in 1998. After a brief stint in Punjab University, he joined JNDU in 2001 and has been serving at JNDU College at Jalandhar since then. He is presently heading Department of University Business School in JNDU College in Jalandhar. He has taught MBA classes throughout the 22 years of his career, and 4 students have completed their PhD under his, and another 4 are being guided presently. Dr. Ashish specializes in corporate finance and capital market, but has also been delivered talks on research methodology and marketing research. He is the placement coordinator of his campus and been instrumental in availing record placements from the MBA students. He has 24 research papers in different UGC and Scopus Indus quality national and international journals in his credit. Round of applause for sir. He has attended more than 40 national and international conferences. He has developed himself as expert on strategic management and entrepreneurship by attending specialized programs as EDIIM Bangalore and ISB Mohali. Other than his academic achievements, he has carried out the consultancy assignments for Aviva Life Insurance, School of Employability, HDFC Mutual Funds, and ONIRCA. He has been instrumental in establishing Entrepreneurship Development Cell, EDC, in his college, and has been arranging entrepreneurship awareness camps and faculty development programs every year since 2013. He is presently heading the Computer Science Department and acting as the president in IIC under MHRD. He has successfully awarded a major research projects by ICSSR worth 5.5 lakhs to work upon identification and promotion of innovation in MSME sector in sports goods and had tool clusters. Besides, he has been getting DST grant for organizing innovation related programs in his campus since 2013. Dear sir, our students are very, very fortunate that today they will listen to you, learn from you, the business models from you face to face. Welcome, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Now I would like to invite Dr. Ashish Arora ji to present his words of wisdom and begin with the workshop. Please, sir. Good morning, dear students. I am indeed very thankful to, first of all, to Dr. Archana and Dr. Dinesh and Professor Manish Khanna, Dr. Rajiv Puri, Dr. Dhawan and Dr. Naveen Sood, and my very dear friend Dr. Nishchay Bahl for inviting me over here. Let me share it with you. I am not an alien in this college. Okay, I worked here from 2001 to 2010. We were running the MBA courses over here. So it is never like an outsider college for me. So it is just like you can say that earlier they used to just call me like that. Now they have to send me a letter and I have to take a permission in order to come over there. So thank you. Thanks a lot for inviting me, ma'am. And to everybody, first of all, you should be feeling blessed that you are having such wonderful teachers who are taking this initiative and have established this IIC. I really congratulate the principal of this college and
to all the visionary teachers sitting over here that they have taken up this first step. Because otherwise on Saturdays normally the students are less and they would have enjoyed samosas and tea in the canteen and they would have not bothered about it. But now they have to invite people like me and listen to their boring or whatever kind of statements are there. I'll promise you it will not be boring, okay? So that is what basically makes the difference, okay? And one thing which I always say, and I think so this is what basically is the philosophy of every DAV teacher is there, that you are our primary stakeholders. If you are there as students, you are happy, you are satisfied, you are delighted, the college will be there. Because the college is not made of buildings and teachers and staff and non-teaching staff and etc. etc. The college is because of you people only. So whatever this activity is there, it's targeted towards you. तो अगले 1-1.5 घंटे के लिए हम ये सोच के चलें कि हमने जो है ना वो कुछ सीख के जाना है, बस दैट्स इट। भी अगर आए हैं चलो, चाहे रजीपुरी सर ने मजबूरी में बिठा दिया है, भी नहीं अगर नहीं जाओगे तो नहीं अटेंड करोगे तो अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी एंड व्हाटएवर एक्सरसाइज दैट इज देयर। आई नो यूर पीपल आर नॉट लाइक दैट, राइट, बिकॉज योर फेसेस शो दैट। क्योंकि कई जगह हम जाते हैं बच्चे पहले, अभी मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ पहले अपना मैसेज पढ़ना शुरू करते हैं व्हाट्सएप पे कौन कौन ऑनलाइन। So majority of students are from MCOM and they are doing research also, and you know they are very keen interested to know about the models. They all also volunteered to come. That is the point. Actually, you cannot force. वो कहते हैं हमारे my father he was a retired professor from Punjab University Patiala, retired as head of the commerce department. तो वो ये कहते थे कि घोड़े को आप पानी के पास लेके जा सकते हो पर पिला नहीं सकते जबरदस्ती। तो similar is the thing over here कि आप लोग अगर यहाँ पे आए हो and you have come by your own choice, so I think so all the claps go to you only. We'll clap for you. With this spirit, I will start my presentation because it's a lengthy presentation. I'll try to make it interesting and as much precise as possible. I'm going to talk about this particular tool over here, which is called as the business model canvas. Okay, now first of all, what is the canvas is there? There are 3 words are there. Like this is a basic rule which I normally apply if I have to understand anything. You can also apply. You can sit, no problem. कोई शरारत करेगा मैं टोक दूंगा. Don't worry. आप बैठ जाओ. I'm searching for the seat as well. Oh great. Okay sir. So हमेशा कोई भी चीज ना समझ में आए, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ सब्जेक्ट इज देयर इन एमकॉम एंड एमबीए, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट इज देयर, तो उसको ब्रेकअप करके करो एक बिजनेस और एनवायरनमेंट, तो अलग अलग चीजें समझो, टॉपिक समझ में आया तभी क्या क्या होता है। Similar over here we have 3 words, that is business, model and canvas. So we will understand what is business, we know all that is what is business, but now we have to combine the 2 words, business model. The business model is, that is how you are going to do the business, very simple. How you are going to generate revenue, how you are going to carry out the activities of the business, that is business model is there, right? And finally the third one is a canvas. What is canvas? Canvas is a blank piece of paper where you draw anything, okay, and it has to be colored obviously, so that the more the colors are there, the more the variety is there, the more beautiful it will look, isn't it? And second thing is you can draw any picture, anything on the canvas as such. But when we talk about the business model canvas, then there are specific constituents are there or certain components are there, and we have to work according to design or develop the business model according to those particular components only. I will discuss those 9 components only in my presentation mainly, okay? But before that, this is a question is there which I always ask the students, and I am not asking, let's just jump on to the answers, that why startups? Okay, so हम क्यों आज बात कर रहे हैं कि why startups have to be there and who can start up and who should not start up. So if you are having any of these particular 6 motivations are there, then you can easily go for a startup as such. Either of these 2. अगर 2 हैं तो फिर तो बहुत बढ़िया. Okay, very simple example is there. अगर सड़क पे कोई मर्सिडीज जा रही हो जलंधर में, मॉडल टाउन में, या ऑडी जा रही हो, तो आपके दिमाग में पहली बात क्या आती है कि किसकी होगी? बिजनेस प्रोफेसर मुनीश खन्ना की, डीएवी कॉलेज? नहीं, सॉरी, अभी हमारी सैलरी इतनी नहीं हुई है ना। हम बात कर रहे थे आज की, हाँ अभी सर कह रहे थे कि हो सकता है रेंज रोवर आने वाले टाइम में आ जाए, बट अभी स्टिल इट इज फार ऑफ। तो पहला क्या आता है? इट मस्ट बी बिजनेस।
He must be an entrepreneur. He must be somebody who has earned money by creating a destiny of himself, a business of himself. So अगर आप किसी के अंदर काम नहीं कर सकते और आपको ये लगता है कि सुबह मैं 9 बजे उठ के बैग उठा के ऑफिस नहीं जा सकता और शाम को 5 बजे मेरे को कोई कहे तो मैं घर नहीं जा सकता, then you are basically perfectly well enough in order to become a businessman as such. Just remember that. Okay, that is the first and the foremost thing is there. उसके अलावा है कि yes, now thanks to, I'm not like a political person, but yes, Make in India is a big program. Startup India is a big program. There are so many programs are there which have been started in order to motivate students like you in order to come ahead and come up with business ideas. हमारे टाइम में जब हम बीकॉम कर रहे थे ना, आज से चलो मैं ये नहीं बताता कितने साल पहले, मेरी एज पता लग जाएगी ना, बट आज से 20-25 साल पहले अगर कोई ये कहता था ना कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ तो probably he would have been slapped by his father. देखा है कुछ, मेरे पास पैसे नहीं है तेरे लिए, कहाँ क्या करेगा, कहाँ से लाएगा? हाँ, unless and until he is a son of a businessman which is already established, that's another story. But हमारे जैसा मिडिल क्लास फैमिली, नो बिजनेस इनकम, नो बिजनेस एक्सपीरियंस, फैमिली में किसी ने किया ही नहीं, बट हम जो अगर घर जाके बात करते तो पहली तो पक्का था भी थप्पड़ पड़ेगा, इसलिए हम बात ही नहीं करते थे. और मेजोरिटी ऑफ जो प्रेजेंटर्स कॉलेजेस में आते भी थे वो यही बात करते थे, हाउ टू गेट अ जॉब. बट नाउ वी बेसिकली टॉक अबाउट दैट इज हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस. दिस इज द चेंज इज देयर. एंड द लास्ट थिंग इज इट्स अ लीप ऑफ फेथ. ये जब आप ये सोचने लग जाते हो ना कि यस आई हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस and I have to start something, I have to do something on my own. It's a very big decision, very big. It's not a small decision, let me tell you. Okay, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. 2014 में हमने पहला बिजनेस आइडिया एक डेवलप किया. 2013 में हमने EDC स्टार्ट किया, तो हम भी उसमें जब इन्वॉल्व होने लग गए, मैं, मेरे एक और फ्रेंड और एक प्रोफेसर हैं डिफरेंट कॉलेज से, हम तीनों ने कहा जी चलो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं. हमें ये लगा भी हूं तो सब समझ आ गया, बिजनेस करना कोई औखा ही नहीं है. 2 वर्कशॉप्स लगा लिया, 4 लेक्चर सुन ले तो समझ आ गया भी चलो बिजनेस कर सकते हैं. एंड वी स्टार्टेड विद एन आइडिया व्हिच इज बेसिकली वी थॉट दैट वी आर द बेस्ट पर्सन इनटू दैट. एक टीचर को सबसे ज्यादा किस चीज की नॉलेज होती है? एनी आइडिया? वन बाय वन, डोंट हम रेज योर हैंड देन टेल. या एनीबॉडी? टीचर को किस चीज की सबसे ज्यादा नॉलेज होती है? किन चीजों की सबसे ज्यादा नॉलेज होती है? Very good. Good. So we know our students well. We know our student needs well. Yes or no? Yes. So we thought probably the best thing that we can do is to sell books. और 2009 में नई फ्लिपकार्ट सक्सेसफुल होनी शुरू हुई थी, Amazon ऑलरेडी आ चुकी थी, तो हमें लगा कि किताबें बेचते हैं ऑनलाइन बेस्ट बिजनेस है. Yes or no? और हमें पता था कि हमारा कॉलेज है, 4-5 कॉलेज और है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं हम उनसे सपोर्ट मांगेंगे और बिजनेस स्टार्ट कर देंगे. तो वी स्टार्टेड विद एन आइडिया दैट इज टू सेल द बुक्स ऑनलाइन. ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ठीक है, फिर हमने कहा जी अब किताबें कहाँ से लें, तो हमें किसी ने रेफरेंस दिया जी कि देयर इज अ बिग शॉप इन माई हीरा गेट इज देयर जिसका नाम है सुभाष बुक डिपो. सुभाष डिपो इज अ होलसेलर इन सेलिंग बुक्स एज सच. तो जैसे जैसे आपको पता है ना, आप एमकॉम के स्टूडेंट्स हो या किसी स्ट्रीम के हो, कि जैसे जैसे आप चेन में ऊपर जाते जाते हो तो मार्जिन बढ़ता जाता है. तो हम सुभाष बुक डिपो के पास गए कि चलो उससे हम 17%, वो कहता है जी मैं आपको 17% पे वो जो बुक्स है वो दे दूंगा, आप 2% मार्जिन अपना ऐड करके 19% पे बेच लेना. वो जो मार्जिन है उसमें आपकी प्रॉफिट भी जनरेट हो जाएगा और आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कवर हो जाएगी. ऑब्वियसली बच्चा ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करेगा, उसके घर ट्रांसपोर्ट करनी है बुक. दैट वाज द आइडिया. यू आर गेटिंग इट? ठीक है ना? सो दैट वाज द आइडिया. हमने उसका नाम भी बड़ा अच्छा रखा, जैसे मेक माई ट्रिप, तो हमने लिखा मेक माई बुक. ठीक है, सो मतलब बच्चा रिलेट कर सके भी हाँ जी मेक माई डाले तो हमारा नाम आ जाए. ठीक है, गूगल SEO वगैरह करके. देन वी थॉट, हम पहले तो सुभाष वाले के पास गए, तो सुभाष वाले ने हमें बिठाया, तो हमने कहा जी अब ऑब्वियसली प्रोफेसर हैं, पहली बार किसी बुक सेलर के पास जा रहे हैं. ठीक है ना, तो वो हमने कहा जी हम ऐसे ऐसे प्रोफेसर है. आओ जी. उसने कुर्सी कर्सी ऑफर करी, चाय चुए कहा, चाय चुए पिलाओ, प्रोफेसर साहब आए हैं, बैठो. दे रिस्पेक्ट अ लॉट. ऑब्वियसली उनकी वजह से, हमारी वजह से उनका बिजनेस चलता है, सीधी सी बात है. फिर हमने कहा जी, कहता किस लिए आए हो? स्पेसिमन लेने आए हो? मतलब टीचर की औकात दिखा दी उसने कि तुम तो इसी
हमने कहा नहीं जी हम तो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो कहता कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हो? तो कहता हमने कहा जी बुक्स का। तो कहता उसने पहली वर्ड ये कहा कुछ नहीं आएगा जी, दाल रोटी खा रहे हैं। मैं उसकी दाल रोटी देख रहा था भी 4 गोडाउन इसी उसके इतने बड़े थे, वो दाल रोटी खा रहा है। मतलब लाला जी है, मतलब उसने उसका मुंह ही वो हो गया भी मैं चाय कैंसिल कर दूं, ये मेरे कंपटीटर आ गए। यू आर गेटिंग द पॉइंट? तो हमें पता लग गया भी डिमांड तो है भैया, तो फिजिबिलिटी भी है। इसका मतलब ये अगर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करके बैठा है तो चलो इसको अगर 20 साल लगे 30 साल लगे तो हम हो सकता है 3, 4, 5 सालों में कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। इतने हम बुद्धू तो नहीं है ना। हमने आइडिया डेवलप करना शुरू किया। अब हुआ क्या कि ऑब्वियसली वी ऑल आर वर्किंग प्रोफेसर्स। तो उन्होंने कहा जी शाम को ना 4 से 5 मिला करेंगे, राइट। तो पहले दिन जब मीटिंग रखी 2 पहुंच गए, तीसरे का फोन आ गया यार आज कॉलेज में ना फंक्शन है मैं तो नहीं आ सकता। चल फिर अगले दिन 2 दिन बाद मीटिंग रखी, फिर फोन आ गया, आज उसी का नहीं ऑब्वियसली डिफरेंट दूसरे का, कभी मेरा आ गया कि आज बीबी को बाजार लेके जाना है तो आज पॉसिबल नहीं है। सो XYZ ABC all kind of reasons used to come. The starting of a business is a leap of faith. आपको पिछला दरवाजा बंद करना पड़ता है, आप प्लेसमेंट छोड़नी पड़ती है, आपको एग्जिस्टिंग अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू बंद करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी बात है। हमारा लीप ऑफ फेथ था ही नहीं, हम उस बिजनेस में खुद ही नहीं कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे, हम उसके लिए टाइम ही नहीं निकाल रहे थे। तो हाउ कुड वी ग्रो द बिजनेस? दिस इज द फर्स्ट लेसन दैट वी लर्न दैट डे। ओके, सो दैट इज व्हाट बेसिकली इज देयर। इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट स्टार्टिंग अप समथिंग, ऑब्वियसली आप यंग हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, अभी आपके पास कोई ऐसा हो कोई रेवेन्यू की कोई या कोई लायबिलिटीज नहीं है, सो यू कैन स्टार्ट इट अलोंग विद दैट। ओके, देयर आर 3 स्टेजेस आर देयर। जब भी आप बिजनेस प्लान करोगे ना 3 स्टेजेस आर देयर। वन इज जनरेट अ बिजनेस आइडिया, ओके, देन सेकंड इज क्रिएट अ बिजनेस मॉडल, एंड फाइनली देन यू क्रिएट अ बिजनेस प्लान। ये वो है जहां पे हम बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं। तो हम आज उस पर नहीं जाएंगे, मे बी सम अदर डे विल हैव सम सेशन जब आपके पास एक वैलिड बिजनेस आइडिया होगा या बिजनेस प्लान होगा। ओके, आई विल डिस्कस विद यू द फर्स्ट 2, somewhat about the first one, then mainly on the second one. Okay, first is the business idea is there. Business idea क्या चीज है? पहली चीज है it should fulfill an unmet need. पहले ये समझो कि कस्टमर की कौन सी ऐसी नीड है जो कि फुलफिल नहीं हो रही, या फुलफिल हो रही है तो अच्छे तरीके से नहीं हो रही। ओके, नाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू, आई विल आस्क यू अ क्वेरी। उबर क्या कौन सी नीड फुलफिल करती है? उबर, ओला, ओके, यू नो लाइक ओला इज देयर, उबर इज देयर। क्या है? टैक्सी एग्रीगेटर सर्विसेज है कि आप टैक्सी मंगवाना चाहते हो, ऐप पे जाओ, एक प्लेस करो, यहाँ से यहाँ जाना है तो टैक्सी विल कम। कौन सी नीड हमारी फुलफिल की जो ऑलरेडी नहीं हो रही थी? पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी। वो टैक्सी वाला पहले भी करता था। अगर आप टैक्सी हायर करते हो, कोई भी टैक्सी वन बाय वन टैक्सी स्टैंड से कोई भी टैक्सी हायर करते हो, वो भी पिक एंड ड्रॉप करता था। It's okay, good. How it is affordable? Sharing, by sharing. नहीं sharing ना कीजिए, आप exclusive जाइए सर। मैं तो ये प्लान कर रहा हूँ। हमें कहीं से भी मिल अभी उसी पे है हम। हमें कहीं से भी मिल सकती है, चाहे हम कहीं पे भी हो, हमें टैक्सी स्टैंड पे Absolutely, point to point system. टैक्सी वाला कहता था जी मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं यहाँ पे छोड़ूंगा। He had his own terms and conditions. What else? Good. So बाकी in India still buying a car is a luxury. एक्सेलेंट। वो ओला उबर तुम्हारे मेरे लिए थोड़ी ना है, ठीक है नहीं, वो तो उनके लिए बेसिकली जिनके पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है। एस्पिरेशन वैल्यू कि मैं अपने किसी एक मूवी आई थी 2 दूनी 4, देखी आपने ऋषि कपूर वाली, वो बेचारा सारी उसमें वो टैक्सी कार के पीछे लगता है। ओला और उबर उनके लिए है कि आप जो है वो एक अपनी एक सोशल इमेज क्रिएट करना चाहते हो कि यस I have come by car, I have not come by motorcycle, I have not come by 2-wheeler. स्टेटस सिंबल नहीं बन रहा, स्टेटस सिंबल बन गया। फिर सेकेंडली उसमें आपको एक एडवांटेज है कि अगर बारिश हो रही है it will provide you the right kind of a vehicle as such. Credibility in the sense कि जो आपका टैक्सी वाला जो उबर का जो ड्राइवर है उसके क्रेडेंशियल्स आपके पास हैं। फिर उन्होंने SOS सिस्टम निकाल दिया कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बटन दबाइए
so automatically a message will go to 5 of your friends कि भी यहाँ problem है. Most important, you can hire it on hour to hour basis. अगर आप टैक्सी मंगवाते थे तो सारा दिन के लिए, so the point is that yes, they have fulfilled one particular need of ours which was earlier getting fulfilled. ऐसा नहीं था कि हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पहले नहीं थे, but they fulfilled in a better manner than your existing players. That is what basically should be your new business idea. Focus on problem solving. Provide easy solutions. Problem solve करनी है कस्टमर की, then he will pay you the money. अगर आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे, आप कह रहे हो जी कि आपका गोवा का ट्रिप मैं बुक कर देता हूँ, बट आपको जो है वो गोवा जाके ही वो होटल का पता चलेगा, ये प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व होगी? I want everything, each and everything, access in my hand. I want the solution immediately. I don't want a delayed solution, right? All these particular things are there that you have to keep in mind. Then, where can the idea come from? Idea can come from anywhere. I will discuss it with you. ये point हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आइडिया कहाँ से है. स्टूडेंट यही कहते हैं सर कोई आइडिया ही नहीं आ रहा. सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है आइडिया ड्रॉट, वी कॉल इट. फैमिन है एक तरीके का. जब आइडिया सर आइडिया ही नहीं आते, और जो हो चुका है हम कहते हैं ये तो सर ऑलरेडी है. एक वेबसाइट है yourstory.com, उस पर चले जाओ, वहाँ पे सारे आइडिया मिल जाते हैं जो इंडिया में ऑलरेडी हो रहे हैं. तो जब आप वहाँ जाते हो, वहाँ जाके वैसे ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यार मेरा आइडिया तो ऑलरेडी कोई कर रहा है. Then the point is, then how we are going to start some idea, right? And who will tell us that whether the idea is good or bad, whether the idea is new or novel? Novelty of the idea is very important. Novelty means newness, okay? And then idea must have some technology intervention. ये बहुत जरूरी है. टेक्नोलॉजी के बिना आपका आइडिया कोई भी कॉपी कर लेगा. Without technology, no idea is possible rather. और आज की डेट में जब टेक्नोलॉजी, पीपल लाइक एंड लव टू यूज टेक्नोलॉजी. ओके, कौन मोबाइल फोन कॉलिंग के लिए यूज करता है? कोई भी नहीं करता. वेरी रेयर. तुम्हारा दूसरा है क्या? पापा ने वो ले रखा है बटन वाला. अच्छा नहीं, मेरे जैसे पेरेंट होते हैं ना, वो बटन वाला ही लेके देते हैं ना. मैंने कहा प्रॉब्ली यू आल्सो हैव अ फादर लाइक दैट. तो दैट इज द पॉइंट इज देयर. हम आज किस लिए फोन यूज कर रहे हैं? फॉर एवरीथिंग अदर देन कॉलिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग. राइट? टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आइडिया? अब हम एक छोटा सा एक मैथ्स प्ले करते हैं. यू ऑल हैव नोटबुक्स और मे बी मोबाइल फोन. चलो मोबाइल फोन तो है ही है ना. 2009 में फ्लिपकार्ट स्टार्ट हुई. हाउ मच कैपिटल वाज देयर? 5 लाख. दो फ्रेंड्स थे, नवीन बांसल एंड सचिन बांसल. उन्होंने एक कंपनी शुरू करी, दैट इज बाय द नेम ऑफ फ्लिपकार्ट. टोटल पैसा लगाया 5 लाख रुपए. 2019 में वो कंपनी उन्होंने वॉलमार्ट को $17 बिलियन में बेच दी. मल्टीप्लाई करो, 17 बिलियन के कितने करोड़ बनेंगे? करो, छोटी सी कैलकुलेशन है. इट विल हेल्प यू अ लॉट. या तो डिप्रेशन में चले जाओगे या मोटिवेट हो जाओगे, फ्रैंकली स्पीकिंग. 17 मल्टीप्लाइड बाय, पहले तो बिलियन को करोड़ में कर ले तो 170 हो गए. ठीक है जी, 170 बिलियन करोड़. ठीक है ना. सो इट इज बेसिकली 170. अब उसको 80,000 से मल्टीप्लाई कर दो. Sorry, 8,000, not 80,000, 8,000. 170 into 8,000. Count the number of zeros. This is the amount of money which they get for selling. It's a huge amount. Let me tell you. 1 बिलियन में आज की डेट में 8,000 करोड़ होते हैं. मोटा मोटा ये है जो मैथ्स है. 1 बिलियन इज इक्वल टू 8,000 करोड़. तो उनको 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 17. दिस वॉज द अमाउंट ऑफ मनी विच दे गेट. तब हो सकता है डॉलर 75 का होएगा या वो होएगा, बट आज की डेट में उसकी वैल्यू इतनी है. उबर की टोटल वैल्यूएशन $56 बिलियन है. और उबर के पास कितनी टैक्सीज है? 0. राइट? और मैं कह रहा हूं कि वैल्यू ऑफ द आइडिया इज 0. हाउ इज इट लाइक दैट? 2009 में फ्लिपकार्ट के साथ 100 और कंपनियां शुरू हुई हमारे जैसी. मेक माई बुक, जिन्होंने कहा जी हम ऑनलाइन बुक सेल करेंगे. स्नैपडील नाम की एक कंपनी भी शुरू हुई. कहाँ है आज वो कंपनी? द वैल्यू ऑफ द आइडिया इज 0. ये बहुत बड़ा लेसन है, ये तुम्हें याद रखना है. एक्चुअली प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आती है? अब तुम्हें दूसरी स्टोरी सुनाता हूँ. अभी मैं आपके साथ एक बिजनेस आइडिया भी शेयर करूंगा. दैट इज एन आइडिया विच आई हैव थॉट इन 2014 और 15 आई गेस. और फिर मैंने ना सर एक ब्लॉग स्टार्ट किया दिनेश सर, उसके ऊपर मैंने वो डाल दिया. मैं कह चलो लेट्स शेयर इट विद एवरीबॉडी. सो प्रोबेबली आपके साथ शेयर भी किया था है ना सर, सूद सर के साथ. अब
जब वो आइडिया शेयर किया तो हमने एक कैंप लगाया जैसे कॉलेज में। तो कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में नहीं बोलते, पर जैसे क्लास खत्म होती है टीचर बाहर जा रहा तो पीछे भागे भागे जाते हैं, सर 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 सर, आदत होती है उनको। तो मैं कहा हाँ जी बताओ सर, अपना अपना आइडिया जो है ना वो ब्लॉग से हटा दो। मैं क्यों? कहते सर मैंने करना है, हमने करना है, 2 बच्चे थे। तो मैंने कहा तो कंपनी रजिस्टर करा ली? कह रहे नहीं। तो मैं कहा जिस दिन कंपनी रजिस्टर करा लोगे ना मेरे पास आ जाना, डॉक्यूमेंट दिखा देना, मैं हटा दूंगा। क्या ठीक है। 6 महीने बाद हम एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गए, वहाँ पे एक कैंप लगाया, वहाँ पे यही आइडिया डिस्कस किया। फिर 2 बच्चे भागे भागे बाहर आए, सर 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 वो आइडिया हटा लो। मैंने कहा कंपनी रजिस्टर करो, दिखाओ, मैं आइडिया हटा लूंगा। 2013 में 14 में आइडिया शेयर किया था, 2023 आ गया, 9 साल हो गए, आज तक वो कंपनी रजिस्टर करा के नहीं आए। आज तक कोई नहीं आया जो कहता है जी वो आइडिया जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। Then how the value of the idea is $56 billion? It is not the value of the idea, it is the value of the execution of the idea. 2009 में 100 कंपनियां और खुली थी फ्लिपकार्ट के साथ, जिन्होंने सोचा था कि हम ऑनलाइन बुक सेल करेंगे, बट ओनली वन हैज बीन एबल टू रीच द वैल्यूएशन ऑफ $17 बिलियन, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द एग्जीक्यूशन। आइडिया की वैल्यू 0 है, इसलिए अगर दिमाग में आइडिया आता है उसको शेयर करो, जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। ये नहीं सोचना ये मेरा है, छुपा के रखना है, ये उसको पता लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें दम होगा वो इम्प्लीमेंट कर लेगा और $17 बिलियन तक ले जाएगा। जिसमें दम नहीं है वो हमारे जैसे अभी भी हम एस्पायर कर रहे हैं, अभी किसी दिन यूनिकॉर्न करेंगे। यूनिकॉर्न पता है ना, $1 बिलियन की वैल्यूएशन। कौन सी कंपनी अभी यूनिकॉर्न हुई है रिसेंटली? एजुकेशन सेक्टर, फिजिक्स वाला, ऑनलाइन फिजिक्स की क्लासें पढ़ा के $1 बिलियन की वैल्यूएशन होगी। 8,000 करोड़, कहना आसान है 8,000 करोड़, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव इट। सो दैट इज वाई जो आइडिया है उसको शेयर करो, बिकॉज जितना ज्यादा तुम्हारे आइडिया का क्रिटिसिज्म होगा, गलतियां ढूंढेंगे लोग, उतना ज्यादा तुम्हारा आइडिया रिफाइन होता जाएगा। जो गलतियां तुमने बाद में करनी है वो तुम अभी उसको करेक्ट करोगे। होता कि नहीं होता? क्लास में टीचर को पूछ लेते हो तो पता लग जाता है अच्छा हाँ ऐसे नहीं लिखना। फिर एग्जामिनेशन में अगर वो गलती कर दी तो फिर वो मार्क्स कटते हैं। तो मार्क्स नहीं कटवाने, बस यही बेसिकली रीजन है। ओके, यू हर्ड अबाउट मैकडॉनल्ड? क्या बेचता मैकडॉनल्ड? यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो मैकडॉनल्ड इज नॉट अ फूड कंपनी। देन यस किसने कहा? देन व्हाट इज इट? एब्सोल्युटली राइट, क्लैप फॉर हिम। He is absolutely right. हम सोचते रहे मैकडॉनल्ड जो है वो फूड कंपनी है। There was a person by the name of Ray Kroc, right? ये 5 मिनट का वीडियो दिखाऊंगा आपको। अब ये वीडियो, this is basically have been taken from a movie. The movie name is The Founder, which is available on Netflix. अगर देख सकते हो तो पूरी मूवी देखो। You will come to know that how McDonald's actually grew and became a big company. रे क्रॉक जो है वो मिल्क शेक मशीन बेचता था, और एक दिन उसकी सेक्रेटरी का फोन आया, सो इट इज इन द क्लिपिंग दैट एक पर्टिकुलर एक लोकेशन है, वहां पे कोई स्टोर है, एक छोटा सा फूड जॉइंट है मैकडॉनल्ड, जिनको 6 मशीनें चाहिए मिल्क शेक। वो साल में 6 बेचता था। वो कहता है एक जगह से 6 का ऑर्डर। ही वाज सरप्राइज्ड, ही विजिटेड ओवर देयर एंड ही लुक्ड एट द आइडिया एंड ही फाउंड एन अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ इट and he made it $1 billion company. So the point is, अब मैंने कहा था ना, idea can come from anywhere. So that is what basically you have to keep your eyes and ears open in order to understand that what is the opportunity over there, and then you can make it a big company. So just enjoy the clipping. This is a beautiful clipping as such. Prince Castle Sales, how can I help you? Hi, Jim. Ray, how's it going down there? Good. Swell. A lot of interest. Hold on, let me fetch your messages. Let's see, Gene Rafferty from United Aluminum needs to reschedule Friday. Ed Nance calling about the refund. Swan & Sons, they called again. We're 60 days past due. A lady from the March of Dimes. Oh, we got an order. 6 mixers. 6? Mm-hmm. Some drive-in out in California. Same place, one place? No, that's impossible. I've got the slip right here. No, you I'm sure misunderstood. You know what? Give me the number. You got a pen? All right.
good afternoon. May I please speak with your owner? Which one? I'm sorry? Dick or Mac? Whichever one is available, I guess. This is Dick. Hello, Dick. This is Ray Kroc from Prince Castle Sales. Some reason I'm calling is someone placed an order. Yes, that was me. How soon can you get them out here? Well, that's actually why I'm phoning now, Dick. Actually, I think there might have been some kind of miscommunication. Top shelf left side, sorry. No problem. My secretary's under the impression that you want 6. Yeah, I think that was a mistake. Well, that's what I figured. I mean, what kind of driving could make 30 milkshakes at a time? Better make it 8. What's that now? There's a brand new box in the book. Now isn't the best time. Yeah, I'm sorry, I understand. I'm still a little bit... You know where to send them, right, Sam? He was under the confusion that probably they have ordered 6 by mistake. But when he talked to the person in McDonald's, the McDonald's person, the owner is saying that we don't want 6, we want 8. Okay, and he was surprised. So he went over there in order to... Bernardino, California, Yeah. corner of 14th Hold on a minute. To anyone in particular? Just the store is fine. McDonald's. Okay? Thanks a lot. Yeah. I'm moving a little ahead because then he's traveling over there. That is all the clipping is there. So I'm taking directly to McDonald's. Oh, sorry. I think I have to drag it. It doesn't allow me. Sorry. क्लिक करके देखो सेंटर में. Maybe I did that. Prince Castle Sales, how can I help you? No, it goes back. Prince Castle Sales, how can I help you? Hey, how's it going down there? Good. Swell. A lot of interest. Hold on, let me fetch your messages. Let's see, Gene Rafferty from United Aluminum needs to reschedule. I'll show you the other way. Let me. Probably I'm having this. Now, what was the system before McDonald's came into the picture? The system was there used to be drive-in system. That used to be a huge parking space. The waiters, mostly the girls, they used to wear those skates and take the order. Then bring the trays to wearing those skates so that their feet should not get tired, and give the order. And but basically he shares with in the later part of the movie that mostly whenever the drive-in orders used to be there, the lady used to bring the wrong order because there were too many orders which they had to service at the same point of time, and then the food gets cold. And then thirdly, the problem is that is to eat in the car, and sometimes the car gets all messy, and children, they cannot be allowed to sit in the car. But without any cutlery, they cannot eat anywhere outside. How McDonald's solved the problem? Just look at that. Don't worry, it was fast. Welcome to McDonald's. May I take your order? Yeah, give me a hamburger and french fries and a Coca-Cola. That'd be 35 cents, please. Great. 15 cents is your change. Here you are. What's this? Your food. No. I just ordered. And now it's here. You sure? All right.
where the solar and the lights. You just need it straight out of the wrapper and then throw it all out. All right. Okay. Where do we eat it? In your car? At the park? At home? Wherever you like. Okay, thanks. Moral of the story. That is more important than the story itself, isn't it? What is the moral of the story? You need to think differently. You need to look. Don't follow what others are doing. You have to follow a different lead, and you will see that people will accept the idea if you are going to understand their problem and you are going to solve it. What problem did McDonald's solve? Anybody? कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी? एक तो ड्राइव इन फ्री वाली मैंने जो आपको बताई. व्हाट एल्स? वेरी गुड, एक्सीलेंट. सो उससे क्या हुआ? सिटिंग नहीं है तो उससे किसको फायदा है? कस्टमर इज बेनिफिटेड और द मैकडॉनल्ड बेनिफिटेड? मैकडॉनल्ड इज बेनिफिटेड. They do not have to spending too much money on creating a diner and invite the people to come over there. It costs, real estate costs you money. ओके वो जो क्वेश्चन था वो अलग चीज है जो हमने कही कि इज मैकडॉनल्ड अ फूड कंपनी और रियल एस्टेट कंपनी. दैट्स अनदर थिंग दैट वी विल नॉट डिस्कस टुडे. बट द प्राइमरी मॉडल वाज दैट मैकडॉनल्ड क्रिएटेड स्टैंडर्डाइजेशन इन फूड डिलीवरी. इफ यू वॉच द मूवी वेरी क्लोजली, लाइक दे हैव डिस्क्राइब्ड द होल मॉडल इनटू इट कि यू गो टू एनी मैकडॉनल्ड्स, you will find the same burger bun. Yes. You will find the same level of the cheese, the same level of pickle, same level of the aloo tikki or the size of the tikki, and everything is so standardized. And they revolutionized, disrupted the whole market as such, and everybody started following McDonald's after that. Okay, so this is what basically is there, that you need to understand the problem of the consumer, and once you are able to understand the problem, then they will rush towards you. They will run towards you. Apple ने कौन सी problem solve की है हमारी? By their iPhone, obviously I'm talking about. Privacy. One by one, security feature, absolutely. So price problem is not has not been solved by privacy. Apple. Is a privacy. हाँ, privacy, absolutely. Sorry, मैं क्या surprise की बात कर रहे हैं. It's the one of the most expensive phone, and then the brand value which it has created. It's a prestige to own that half-eaten apple. So जब तक एप्पल का फोन होता था, I used to keep it on the table. Now I keep it in the pocket, है ना? Because it's no longer Apple, it is Android. Anyhow, so this is what basically is there. कि what is the value of the idea? It is zero. The ultimate idea. ऐसा नहीं है कि मैकडॉनल्ड से पहले किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि फूड में स्टैंडर्डाइजेशन लेके जाओ. रे क्रॉक से पहले किसी ने नहीं सोचा होगा. तो value of the idea is nothing. It is the execution which ultimately matters. And the first step towards execution is, ये थोड़ा सा skip कर देते हैं. ये आपको पता है. These are the new age ideas are there, right? So I'll come over to my. These are the sources of business ideas are there. You read the newspapers, go to malls, look at the people, the business the people are doing over there, how they are shopping, what they are shopping, what kind of things they just touch. What are the things they look, what kind of things they go to try, and you can find out a solution out of it. Okay? Business model canvas. Okay, that is what basically is the topic of my lecture today. So that is why I'll be focusing upon this. It has got 9 components. Okay, and all the 9 components have been shown over here
that is the value proposition one by one. This is more indicative. The value proposition number 1. Then we have number 2, that is the customer segments. Number 3 are the channels. Number 4 are the customer relationships. Then we have the key activities. Number 5. Okay, I'll start once again. Value proposition number 1. What is the value you are offering to the customer? Which need you are fulfilling of the customer? मैकडोनल्ड क्यों जाते हो? चलो इसी बात पे डिस्कस कर लेते हैं. कौन सी नीड फुलफिल कर रहा है मैकडोनल्ड आपकी आज की डेट में? यस, व्हाई डू यू गो टू मैकडोनल्ड? व्हाई डू यू गो टू कैफे कॉफी डे एंड स्पेंड 100 रुपीज ऑन अ सिंपल कॉफी? ऐसा कुछ खास नहीं होता उस कॉफी में. आई मेक अ बेटर कॉफी एट माय होम रादर. ब्रांड से क्या होता है? How does brand matters? Very good. It matters, but how does it matter? कैसे पता चलेगा भी कैफे कॉफी? नहीं, आप किसको दिखा रहे हो कैफे कॉफी डे में जाके? Absolutely, that is the point is there. Social. Because when you go, आज की डेट में आप क्या करते हो? You enter into McDonald, you enter into कैफे कॉफी डे. The first thing people like you do, ठीक है ना? हमारे जैसे तो डालते ही नहीं है, ठीक है ना? Because we think so that yes, we are here, so itself it's a brand association is there. But आपके जो जनरेशन है वो कहती है, let me check in Instagram, having enjoying coffee with friends at a cafe coffee day, Lajpat Nagar, Jalandhar, whatever, isn't it? And then you put on the selfies. So is McDonald really selling food? Are you bothered about the food over there? It has to be good. If it is bad, you won't go there. Yes or no? Yes. It has to be good only, but it not has to be the best. Probably they don't make the best burgers in the world, but they make good burgers. So वो एक बेसिक कंडीशन है. आप मैकडॉनल्ड्स ले जाते हो कि यस, फूड हैज टू बी ओके. सेकेंडली, रेडी पे खड़े होके सोशल स्टेटस नहीं बनता. मिट्टी भी होती है, क्वालिटी इज ऑल्सो नॉट गुड, हाइजीन इज नॉट गुड. बट व्हाट इज द मेन रीजन वी आर गोइंग ओवर देयर? यस, स्टेटस हो गया. स्टेटस जब फेसबुक पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, वो तो हो गया. व्हाट एल्स? डिस्कशन. तुम इसलिए तो नहीं जाओगे ना बार बार मैकडोनल्ड में. उसका क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ जो इनका है कि आप इसलिए बार बार मैकडोनल्ड तो नहीं जाओगे ना कि आपने इंस्टाग्राम पे डालना है. यार मैं इंस्टाग्राम पे डालनी है, मैंने रील बनानी है, मैं चलो आज मैं फिर मैकडोनल्ड जाऊं. नहीं जाते. आप जा रहे हो तो आप इसलिए डालते हो. यस और नो? यस. व्हाट एल्स? सेव्स टाइम, क्विक डिलीवरी. वेरी ट्रू. अगेन सर, इट इज रेडी वाला जल्दी बन जाता है, सॉरी, है ना? ते ओ रेडी वाला हुंदा भी ज्यादा स्वाद है. वो नूडल भी पा दिंदा है. यहाँ पे कोई नूडल नहीं होती, वैरायटी ज्यादा है. व्हाटएवर इज देयर. यस, समबडी सेड समथिंग. यस, क्रेविंग फॉर टेस्ट. क्रेविंग फॉर टेस्ट सब जगह. जो एक बच्चा है ना हैप्पी मील लेने जाता है, उसको टेस्ट से कोई मतलब नहीं है. उसका बर्गर उसकी मम्मी खाती है, वो टॉयज के. तुम किस लिए जाते हो? मैं तो ये पूछ रहा हूँ. अभी तक तुमने बताया नहीं है मुझे. बिल्कुल भी नहीं. भूख के लिए, अगर भूख के लिए तो फिर मम्मी ने परांठी पैक करके दी होती है. दैट इज द बेस्ट थिंग इज देयर. डिस्कस विद मी. अच्छा, घर पे जब कुछ ना बनाया हो. वेरी ट्रू. हु इज मैरिड ओवर हियर? दैट इज द रीजन. एग्जैक्टली. ठीक है जी, बिल्कुल सही है. यस, यू गो देयर टू क्रिएट मेमोरीज. Basically that is the idea. Because you go over there, you click pictures, you enjoy with your friends, and those have to be happy memories. अब अगर आप मैकडोनल्ड में जाओ और एसी ना चल रहा हो, will it be happy memory? You remember that memory also. That's a bad memory. But basically it is happy memory. Uber क्या दे रही है तुम्हें? What is the value? You have to think upon this, because ये हमारा सबसे पहला point है. This is the value proposition is there. उबर हमारी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है? सोशल, यस, इट्स देयर. अफोर्डेबल मोबिलिटी, दैट इज नॉट बेसिकली द प्रॉब्लम व्हिच उबर हैज सॉल्व्ड. मैं टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकता सारे दिन के लिए, बट मैं यहाँ से लाजपत नगर जाना है तो मेरे को अगर 200 रुपए लगते हैं, इट्स सो कन्वीनियंट फॉर मी. आई डोंट हैव टू. और इवन लाइक people who are owning a car, they prefer to go with Ola and Uber in metro cities, क्योंकि car parking is a big problem. Absolutely right. You don't have to worry about it, right? इसी तरीके से my wife, she goes to Atari Bazaar, तो वो कहती है कहाँ कार खड़ी करनी है, Uber पे जाओ, 200 रुपए दो,
सॉरी ओला पे जाओ, वहां 200 रुपए दो, जब जरूरत किया वापस आए, फिर बुक किया, घर पहुंच गए, बात खत्म। अफोर्डेबिलिटी, कन्वीनियंस विद स्टेटस, एब्सोल्युटली। अच्छा, उबर और ओला का कंपटीटर कौन है? टैक्सी वाले हैं? नहीं है, क्योंकि दे फुलफिल अ सेपरेट नीड। टैक्सी हमें चाहिए लॉन्ग रूट के लिए, आउट स्टेशन के लिए। अब चलो वो इन्होंने भी देना शुरू कर दिया, बट प्राइमरीली उबर का कंपटीटर है ऑटो वाला। तो हम ऑटो से उबर प्रेफर करते हैं क्योंकि हमें स्टेटस मिलता है, एंड प्लस वी आर गेटिंग अ सेफर एंड एट द सेम रेट, सो देयर इज नो हार्म। दैट इज द वैल्यू व्हिच वी ऐड टू आवर प्रोडक्ट। ओला ने तो शुरू कर दिया है ओला। इनिशियल वो तो ऑब्वियसली वो तो फिर मार्केट कैप्चर करने वाली बात है ना, बट इनिशियली हाउ द आइडिया स्टार्टेड, दैट्स व्हाट आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट। बैंगलोर में भी जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है उसको रैपिडो ने एब्सोल्युटली, हाँ, वो फिर बंद हो गई अब, आपको पता है। एनीहाउ दैट्स अनदर थिंग। एनीहाउ, सो द पॉइंट ओवर हियर इज, हम दूसरा, तुम्हारा टारगेट सेगमेंट कस्टमर कौन है? Who's your target customer segment? Is everybody your target customer segment? Instagram का टारगेट सेगमेंट कौन है? यंग बच्चे, 15 साल से लेके हम दोनों का तो 50 साल है ना, 15 से 50 नहीं, पर नहीं है, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट ही नहीं है। और इवन इफ इट इज देयर, सो इट इज नॉट एक्टिव। वी आर स्टिल एक्टिव ऑन फेसबुक ओनली। सो फेसबुक इट्स हैविंग अ सेपरेट, आपका कस्टमर आपको पता होना चाहिए। When we started that makemybook.com, our customer segment was very clear. Sir, not every student. Can you tell me which student we were targeting? College student. Obviously college student, but under that subcategory. So could not afford to go and buy the books. Absolutely. Who could not afford to go and buy books? Those who are hostlers, probably. Those who are too busy. Oh, great, sir. Maybe okay. hostlers. Maybe hostlers. Maybe, yes. One category. Good, sir. What else? रूरल एरियाज में जो है, चलो हम वो बेचारा ऑनलाइन कहाँ से आएगा 2013 में? दैट वाज नॉट द टारगेट सेगमेंट, है ना? नहीं, वो भी नहीं थे। हम टेक्स्ट बुक्स बेच रहे थे, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की टेक्स्ट बुक वो नहीं बेच रहे थे। इट वाज द गर्ल्स जो प्रेफर करती हैं, जो बुक मंगवानी होती है। हमने 10 गर्ल्स को इंटरव्यू किया, हमने कहा बुक कैसे मंगवाते हो? पापा को क्या देते हैं? पापा आते आते दुकान से ले आते, भैया को भेज देते हैं, भैया जाके माहिरा गेट से ले आता है। बॉयज को पूछा किताब, हम तो लेते ही नहीं। एंड वी गॉट एक्सीलेंट फीडबैक। हमने कहा ये बिजनेस बेस्ट है, हम गर्ल्स को टारगेट करेंगे, एंड स्पेसिफिकली जो कहती है कि हाँ जी भी माहिरा गेट जाना प्रॉब्लम है, चैलेंज है, but ultimately we failed. Now the question is why we failed. वो तो चलो एक था कि भी हम इकट्ठे नहीं बैठ सके, बट मेनली हमें पता लग गया कि ये डिमांड नहीं है, क्योंकि हमें ये भी पता चला कि गर्ल्स भी किताबें नहीं खरीद रही। There is a second hand rental market is there, which is very active, and we didn't want to go into that, so that is why we closed the idea. What is the lesson we learn out of it? Fail fast and fail cheap. 5-5 हजार रुपए लगे थे सिर्फ, वो भी चाय पानी कॉफी पे, और वो जो घूमने फिरने में बस 15,000 रुपए नुकसान में हम बाहर आ गए। हम बड़े सुखी थे, हमारे घर वाले भी खुश थे। फिर हमने अगला प्रोजेक्ट लॉन्च किया 2018 में। इट वाज अ हाइपर लोकल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बाय द नेम ऑफ फ्रेश फ्रूजीज। नाम ही इतना टफ था, हमें बहुत गालियां पड़ी, ये क्या नाम रखा है। अगली बार हम 15 लाख के नुकसान पे बाहर आए। राइट, सो वी डिडंट लर्न द लेसन। Right? We learned some lessons, but didn't learn the other lessons. So that is why it is very important that before you start, हमारे पास गाइड करने वाला कोई नहीं था। बिजनेस मॉडल कैनवस, ये कैनवस बहुत हेल्प करता है आपको। This answers all your questions. Now look at these components one by one. First is value proposition. Second is who's your customer target segment. तीसरा, कस्टमर तक पहुंचोगे कैसे, चीज कैसे डिलीवर करोगे। चौथा, कस्टमर को अपने पास कैसे रिटेन करके रखोगे, और नया कस्टमर कहां से आएगा। शार्क टैंक देखा था ना, वो अनुपम एक ही क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज योर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, और दूसरा क्या क्वेश्चन पूछता हो, लास्ट मंथ सेल्स। राइट, देन फिफ्थ, कौन सी एक्टिविटीज आपको करनी जरूरी है उस वैल्यू को डिलीवर करने के लिए। देन सिक्स्थ, रिसोर्सेज कौन से चाहिए, क्या चाहिए। Can I take a photograph? Sorry,
इट्स ऑल योर्स, मैं तो ये छोड़ के जाऊंगा, मैं तो प्रिंट आउट भी लेके आया हूँ. This has been basically given by two Harvard professor, Lee Osterwalder and another fellow. So it's you go to Google and you search for business model canvas, बहुत कुछ अवेलेबल है. अब दूसरी स्टोरी सुनाता हूँ, हाइपर लोकल वाली, फ्रेश रूची से. हमने वो स्टार्ट किया. ये मैं इस पे आ रहा हूँ, ये पॉइंट पे. उसमें बेसिकली क्या था, हम बिग बास्केट से पैरेलल ही आए थे. बिग बास्केट हमारे से 6 महीने बाद जलंधर में आया था, तो हम इंस्पायर्ड तो वहीं से हुए थे. तो हमें ये लगा कि जलंधर में भी लोग घर पे सब्जियां और फ्रूट मंगाना चाहते हैं. आपको पता है कोई कंपनी जो आज की डेट में ऐसा कोई काम कर रही है जलंधर में? 1 by 1 ब्लिंकिट, मिस्टर पोटैटो वेजीज, नाम सुना है? इट्स देयर. और ग्रोफर्स ब्लिंकिट हो गया, जियो मार्ट, मिल्क बास्केट, काफी प्लेयर्स हैं. हम 2018 में हमने स्टार्ट किया. तो हमने स्टार्ट किया मार्च के महीने में. यू आर सिटिंग इन मार्च ओनली, इजंट इट? सो हमने कहा जी, हमने उसमें वैल्यू प्रोपोजिशन कैसे रखी. नॉर्मली कौन ऑर्डर करता है फ्रूट एंड वेजिटेबल? एब्सोल्युटली राइट. जो हाउसवाइफ्स हैं या जो घर की लेडीज हैं, ठीक है ना. बंदे सिर्फ लाने का काम करते हैं, वो मैसेंजर होते हैं, ट्रांसपोर्टर होते हैं. हम अपनी मर्जी से भिंडी भी नहीं ला सकते, ठीक है ना. और अगर घिया मिसिंग हो गया तो जान निकल जाती है. सो दे यूज्ड टू ऑर्डर. अब जब घर पे डिलीवरी होगी तो लेडी घर पे एक नॉक करके एक बंदा आया सब्जियां देने. ऑब्वियसली उन्होंने सब्जियां भी थोड़ी नहीं मंगानी, सब्जियां भी काफी सारी होंगी. तो हाउसवाइफ अगर घर पे है, उसने ऑर्डर रिसीव किया, तो क्या कहेगी, कहाँ पे रखो इसको? टेबल पे रख दो. दिस इज द नॉर्मल. विल दे अलाउ स्ट्रेंजर मेल टू एंटर इनटू देयर हाउस? आंसर इज नो. हमने यही प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की. वैल्यू प्रपोजिशन कि देयर शुड बी अ फीमेल डिलीवरी पर्सन. सो देयर यूज्ड टू बी वन ड्राइवर एंड द डिलीवरी पर्सन यूज्ड टू बी द फीमेल. वो हमने स्पेसिफिकली फीमेल हायर की कि दे शुड गो ओवर देयर. और फिर वो बातें करके आए आंटी से, और आंटी कैसे हो? आंटी आज भिंडी बड़ी प्यारी आई है, आप कहो तो मैं वो भी भिजवा दूं. मतलब रिलेशनशिप मार्केटिंग, राइट. सब कुछ बढ़िया था, सिर्फ एक गलती हो गई. व्हेन लॉन्च किया अप्रैल में, इट वाज पीक ऑफ समर. व्हेन वी लॉन्च्ड तो हमने सर एस्टिमेट भी बनाया कि अप्रोक्सीमेटली हमारे जितने भी, हम 5 फाउंडर्स थे, हमारे 7000 फेसबुक फ्रेंड्स थे. तो हम बड़े खुश कि सबको मैसेज डाल दिया. 7000 चो कटो कट 1% भी लेके चलिए तो 70 ऑर्डर तक कितने मिल गए, ठीक है. हम तो चलो 10% की मेरे जो कुलीग हैं, जो पार्टनर थे, कालरा सर, प्रॉब्ली ही विल कम आल्सो फॉर लेक्चर, तो आप उनसे ये कंफर्म कर सकते हो कि हम, वो मेरे से पूछा करते थे कितने ऑर्डर आ जाएंगे चीज. मैं कहा जी 10%. कितने नहीं गए, 700 बंदा कमिटेड हैगा. सबने फेसबुक पे थंब दिखा दिया है, लाइक कर दिया है, कांग्रेचुलेट कर दिया है, सब कुछ हो गया. फर्स्ट डे केम, वी लॉन्च द ऐप. हाउ मेनी ऑर्डर्स केम? एनी आइडिया? 0. नहीं. 5 ऑर्डर तो फाउंडर के घर से ही आ गए. मैं वो कह रहा हूँ जो फाउंडर्स के से नहीं आए. यस, चलो गुड, शी इज क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक. देयर वाज ओनली 6 ऑर्डर्स, 5 हमारे और 1 ऑर्डर आया. अब वो जो ऑर्डर आया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग. मैं ऐप लॉन्च हो गई, सब्जियां आ गई मंडी से, मैं कॉलेज चला गया. तो मैं कॉलेज में था, दोपहर को 2 बजे उसका कॉल सेंटर वाली लड़की का फोन आया. वी हैड केप्ट 2 फीमेल फॉर कॉल सेंटर. तो सर आप ना, आपको एक नंबर दे रही हूँ, आप इस पर कॉल कर लो. मैं कहा मैं कॉलेज में हूँ, मैं अभी नहीं बात कर सकता. आई विल कम एट 4 o'clock. देन आई टॉक. जब से मैं गया, वो कहती लो सर ये आपसे ना तड़प रहा है बेचारा बात करने के लिए, आपका ऑपरेशन मैनेजर कौन है? तो मैंने कहा ओके गिव द फोन टू मी. तो मैंने उससे बात की. वो कहता नाम चेंज कर लो अपना, फ्रेश फ्रूजीज की जगह स्टेल फ्रूजीज रख दो. I understood there is something wrong. मैंने कहा क्या हुआ? That person had ordered 2 dozen bananas. NRI था, इंडिया में आया, हमने पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करे, उसने पैम्फलेट देखा, उसने ऑर्डर प्लेस किया 2 डजन बनानास. हमारा बंदा बनाना लेके चल पड़ा. उसने फोन पे एड्रेस लिखवाया. लड़की ने लिख लिया सिल्वर अपार्टमेंट्स. देयर आर 6 सिल्वर अपार्टमेंट्स इन जलंधर. 1.5 घंटा हमारी वैन जो रेफ्रिजरेटेड नहीं थी जलंधर की सड़कों पे घूमती रही, एक सिल्वर अपार्टमेंट से दूसरे तीसरे चौथे, वो लास्ट वाले में था. तो जो बनाना थे 1.5 घंटा अप्रैल की गर्मी में बंद में गल गए. वो तो रख के आ गए. वो जब उसने खोला होगा, ही सेड दिस,
Then I went to his place, did some convincing. मैं कीवीज ले गया उसके लिए 1 किलो भी, चल थोड़ा कन्विंस हो जाएगा वो, चलो ले गया जो भी हुआ. That is the point. What is the moral of the story is? Moral of the story is we didn't think about that we should have a refrigerated van in order to fulfill our orders. Basically. और अगर बिजनेस मॉडल कैनवस बनाया होता तो प्रॉब्ली ये मिस्टेक नहीं होनी थी. अच्छा, तुमने ये नहीं पूछा कि 2 डजन नाना, एक कल एनआरआई आया, वो क्या करेगा? हमने पूछा उससे, तो क्या करेगा? हाँ जी, नहीं रिश्तेदारों को अकेले की नॉलेज है. मैं तो तुम्हारे घर नहीं आ रहा फिर. वो कहता मैं हर साल जब भी आता हूँ मैं माता चिंतपूर्णी के मंदिर जाता हूँ, रास्ते में बंदरों ने हमारा बिजनेस खराब कर दिया. ओके, सो नेक्स्ट इज, अब ये इम्पोर्टेंट चीज है, आप जब जाओ ना माता पे जाओ तो आप केले जरूर लेके जाया करो. खिलाने चाहिए हमें. देन व्हाट इज योर रेवेन्यू? रेवेन्यू कहाँ से आएगा? और फाइनली आपकी कॉस्ट क्या है? हम ये सारे डिस्कस करेंगे. ओके, वन बाय वन. सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यू प्रपोजिशन और कस्टमर सेगमेंट. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें आप बाद में बनाओगे. सबसे पहले आपको इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा. और कस्टमर सेगमेंट में हम सबसे पहले करेंगे कस्टमर प्रोफाइल. 3 चीजें अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी है.